Uh, Good evening, friends. My name is Karthik. I'm currently studying in AIIMS Nagpur, and I have secured NEET AI ranking grade 7. So today, I'm going to talk about question answers for discuss करने का. So first question is, what is electrocell? तो electrocell का मतलब क्या है? इधर लिखा हुआ है. An electrochemical cell is a device that can generate electric energy from the chemical reactions occurring in it, or use the electrical energy supplied to it to facilitate chemical reactions. मतलब ये क्या करता है? केमिकल रिएक्शंस के वजह से उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होगा, उसके वजह से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करेगा, नहीं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके वो केमिकल रिएक्शंस बनाएगा. दो तरह के सेल्स होते हैं, वो बताता हूँ बाद में. So these devices are capable of converting chemical energy into electrical energy or vice versa. Chemical energy को electrical energy में बदल सकता है and electrical energy को chemical energy में बदल सकता है. Common example of the electrochemical cell is a standard 1.5 volt cell, which is used to power many electrical appliances such as TV remotes and clocks. जो भी हम shells यूज करते हैं ना, लेकिन some remotes हो गया, नहीं तो क्लॉक हो गया, इन सब में ये स्टैंडर्ड 1.5 वोल्ट का सेल यूज करते हैं, वो भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है. Such cells capable of generating an electrical current from the chemical reactions occurring in them are called as galvanic cells or voltaic cells. Alternatively, the cells which cause chemical reactions to occur in them when an electrical current is passed through them are called electrolytic cells. तो मैंने बोला था दो तरह के सेल्स होता है, एक होता है गैल्वानिक सेल्स, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स. तो गैल्वानिक सेल्स में क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल करंट को जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस. दो सेल्स आर नोन एज गैल्वानिक सेल्स. एक और टाइप का सेल है, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स. ये सेल क्या करता है? The cells which cause chemical reactions to occur in them when an electrical current is passed through. So those type of cells are known as electrolytic cells. ये है एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. इसमें एक एंड में है एनोड और दूसरे एंड में है कैथोड. एनोड वो जगह है जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड कैथोड वो जगह है जहां पर रिडक्शन हो रहा है. और दो हाफ सेल्स हैं, इसको हाफ सेल्स बोलते हैं. ये हाफ सेल है और ये हाफ सेल है, एंड ये जो बीच में है ना, ये है साल्ट. उसका भी यूजेस बता दूंगा. तो नेक्स्ट इज electrochemical cells generally consists of a cathode and an anode. The key features of cathode and anode are tabulated. So what is cathode, what is anode, उसका टेबल है. कैथोड का मतलब क्या है? कैथोड डिनोटेड बाय अ पॉजिटिव साइन सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड, है ना. कैथोड वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम होता है. इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो रहा है मतलब क्या है? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन प्रोसेस. मतलब कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है एंड इलेक्ट्रॉन्स उधर कंज्यूम हो रहा है. तो एनोड, एनोड का मतलब क्या है? डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन. सो एनोड इज डिनोटेड बाय नेगेटिव साइंस बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड हियर. दैट्स व्हाई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का लिबरेशन होता है. तो फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. तो फिर एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है. A reduction reaction occurs in the cathode of an electrochemical cell, and oxidation reaction occurs in the anode of the electrochemical cell. So cathode में electrons move into the cathode and anode में electrons move out of the cathode. इधर से क्या हो रहा है? electrons का reduction हो रहा है. मतलब ये anode है, इधर से electrons का सर liberation हो रहा है. मतलब electrons are moving out of the cathode, electrons are moving out of the anode. And cathode में क्या हो रहा है? reduction हो रहा है, मतलब electrons का consumption हो रहा है. Same. तो फिर electrons are moving into the cathode. ठीक है. So next is, there are two types of cells. First one is primary cell and second one is secondary cell. Primary cell का मतलब क्या है? Primary cells are basically used and through galvanic cells. The electrochemical reactions that take place in these cells are irreversible in nature. Hence, the reactants are consumed for the generation of electrical energy, and cell stops producing an electrical current once the reactants are completely depleted. Primary cells मतलब क्या है? It is basically use and throw cell.
मतलब गैल्वेनिक सिस्टम, इधर केमिकल रिएक्शंस होता है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से करंट बनता है, बस उसको अपन रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे कि करंट देके केमिकल रिएक्शन, करंट देके उसको रिवर्सिबल रिएक्शंस नहीं कर पाते, वो जो केमिकल रिएक्शन बनता है ना वो बस एक तरफ ही जाता है। ठीक है, the electrochemical reactions that take place in these cells are irreversible. Reversible नहीं है, irreversible है आंसर। Hence the reactants are consumed. Irreversible नहीं है तो जो पहले होता है ना, सबस्ट्रेट्स, वो कंज्यूम हो जाता है। वो कंज्यूम होने के बाद क्या हो जाता है, ये सेल स्टॉप वर्किंग। ठीक है, and the cell stops producing an electrical current once the reactants are completely depleted. नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल का मतलब क्या है, ऑल्सो नोन एज रिचार्जेबल बैटरीज आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इन विच द सेल्स हैज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, दैट इज द सेल कैन फंक्शन एज अ गैल्वेनिक सेल एज वेल एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मान लो कि सेल रिवर्सिबल रिएक्शन भी करवा सकता है, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल करंट बन गया एक तरफ से, और दूसरे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल करंट दे दिया और वही केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल हो गया। जैसे वो केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल हो गया, फिर से अपने पास सबस्ट्रेट आ जाएंगे, तो फिर उन दोनों सबस्ट्रेट को मिला के फिर से क्या हो जाता है, जो पहले रिएक्शन हो जाता है ना वो बन सकता है। इस वजह से सेल फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो फिर उसका मतलब क्या है, दीज आर रिचार्जेबल सेल्स। सेकेंडरी सेल्स आर रिचार्जेबल सेल्स एंड प्राइमरी सेल्स आर फ्यूजन थ्रो सेल्स. Most of the primary batteries multiple cells connected in series, parallel or combination of the two. Batteries का मतलब है multiple cells connected in series, parallel or combination of the two. So most of the primary batteries are considered wasteful and environmentally harmful devices, क्योंकि प्राइमरी सेल्स बस एक ही बार यूज होता है ना, तो फिर एक बार यूज होने के बाद उसको थ्रो करना पड़ता है, तो फिर इट इज एनवायरमेंटली हार्मफुल है. So this is because they require about 50 times the energy they contain in the manufacturing process. They also contain many toxic metals and are considered to be hazardous. So next the two primary types of electrochemical cells are galvanic cells and electrolytic cells. Okay. Next, the differences between galvanic cells and electrolytic cells. So galvanic cells का मतलब क्या है, chemical energy is transformed into electrical energy in these electrochemical cells, and electrolytic cell का मतलब क्या है, electrical energy is transformed into chemical energy in these cells. Okay. Galvanic cell, the redox reactions that take place in these cells are spontaneous in nature. है ना, जो भी रिएक्शन अकर होता है इसमें, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसके लिए बाहर से कुछ एनर्जी वगैरह नहीं चाहिए, तो दोनों को अपन उधर, दोनों सबस्ट्रेट को उधर डाल दिया, नहीं तो जो भी रिएक्टेंट्स को उधर रख दिया तो अपने आप रिएक्शन चालू हो जाएगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट हो जाता है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है, अपन बाहर से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, उसकी वजह से वो क्या है, जो भी रिएक्शन उधर हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से उधर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब बाहर से एक एनर्जी ले रहे हैं, मतलब that is the reactions are non-spontaneous. Next, galvanic cell. In these electrochemical cells, the anode is negatively charged and the cathode is positively charged. So these cells feature a positively charged anode and a negatively charged cathode. The electrons originate from the species that undergoes oxidation. जो भी species oxidation हो जाता है उससे ही electrons का origination होता है. इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन बताया था ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो भी चीज उधर लिबरेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, हाँ उस चीज से इधर इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहा है. एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनल फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, अपन इधर बैटरीज कुछ तो यूज कर रहे हैं ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए, उधर से हमें इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन. इसमें बहुत टाइप्स है, लाइक यूज एंड थ्रो टाइप हो गया, यूज एंड थ्रो में ट्रायल एंड एरर मेथड हो गया, ऐसे कि बहुत सारे टाइप्स हैं. मैं एक आसानी सा टाइप बताता हूँ, ये हर जगह यूज कर सकते हैं. दिस प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड एवरीवेयर एंड इजीली बैलेंस हो जाता है. इसमें अपन को क्या करना है, पहले जो भी रिएक्शन दिया पहले मेटल को बैलेंस करना, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करना, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस.
तो मेटल्स मतलब क्या है? मेटल मतलब जिंक हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। जैसा इन मेटल्स को पहले बैलेंस करना है। नॉन मेटल्स मतलब कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनको बैलेंस करना है। उसके बाद हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, उसके बाद हमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन। ठीक है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल है Mg3N2 plus H2O giving rise to MgOH twice plus NH2। ठीक है। तो इधर क्या लिखा हुआ है? पहले मेटल को करना है। पहले मेटल को करना है, मतलब इधर मेटल कौन सा? मैग्नीशियम है, Mg। तो फिर Mg इस तरफ है, तो फिर इधर 3 आ गया, Mg आ गया। उसके बाद किसको करना है? अपन को नाइट्रोजन को करना है। 2 नाइट्रोजन है इस तरफ, तो फिर इधर 2 नाइट्रोजन लिखना है। और नेक्स्ट ऑक्सीजन देखनी। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन इधर देखो, ऑक्सीजन 2 है, 2 3 6 ऑक्सीजन है। तो फिर इस तरफ अपने पास 6 ऑक्सीजन है, और इधर भी 6 आना चाहिए, तो फिर इधर 6 लिख दिया। और उसके बाद हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन इधर कितना है? 6 2 12 हाइड्रोजन, और इधर कितना है? इधर 6 हाइड्रोजन है प्लस 6 हाइड्रोजन है, टोटल 12 हाइड्रोजन। तो फिर इक्वेशन इज बैलेंस्ड, द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो पहले किसको किया? मेटल को किया। तो मेटल में क्या किया? मेटल Mg 3 Mg है, तो फिर इधर 3 Mg है, तो मेटल हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन को किया, इधर 2 नाइट्रोजन है, तो फिर NH3 में इधर 2 लगा दिया, तो फिर 2 नाइट्रोजन हो गया। उसके बाद हमें करना है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितना है? इस तरफ है 0, मतलब ऑक्सीजन 2 2 3 6 ऑक्सीजन है इधर, तो फिर इस तरफ 6 अपने लगा दिया। तो फिर उसके बाद हाइड्रोजन को करना है, इधर 12 हाइड्रोजन है, और इधर 6 प्लस 6 12 हाइड्रोजन। ठीक है। तो अपन इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? व्हाट इज द पर्पस? पर्पस ऑफ बैलेंसिंग इज, जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें मास कांस्टेंट रहता है, मास नहीं चेंज होता तो जो भी केमिकल रिएक्शन, तो फिर जो भी रिएक्टेंट साइड मास है वही प्रोडक्ट साइड होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मास होना चाहिए। तो उसके वजह से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक। तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल है CuO plus H3 giving rise to Cu plus N2 plus H2O। हाँ, तो फिर इधर देख लो, पहले मेटल को करना है। मेटल Cu एक एक सही है। अमोनिया, हाँ अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन है, इधर एक नाइट्रोजन, इधर 2 नाइट्रोजन है, तो फिर हमें क्या करना है? पहले इधर 2 लगाना है। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर एक है, और ऑक्सीजन इधर एक है, और इधर है। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर कितना है? 3 2 6 है, और इधर 2 है, तो फिर इधर अपन को कितना करना है? 6 करना है, तो फिर इधर मैंने लगा दिया 3। जैसे इधर 3 लगा दिया, ऑक्सीजन को बदल दिया, तो ऑक्सीजन इस तरफ 3 हो गया। तो पहले फिर से पहले से देखते हैं। इधर कॉपर एक हो गया, कॉपर एक हो गया, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन इस तरफ 3 हो गया, इस तरफ 1 हो गया, तो फिर इस तरफ मैं लगा दूंगा। सॉरी। कॉपर इस तरफ एक हो गया, इस तरफ एक हो गया, नाइट्रोजन इस तरफ 2 हो गया, इस तरफ 2 हो गया, ऑक्सीजन इस तरफ 3 हो गया, तो फिर इस तरफ भी 3 आना चाहिए, तो फिर इस तरफ 3 लिख दिया। आ, अभी अभी देखे तो क्या हो जाएगा? जब मेटल का भी नंबर बदल गया, तो फिर कॉपर इस तरफ 3 हो गया, इस तरफ एक हो गया, तो फिर इस तरफ भी 3 लिख। तो अभी इक्वेशन बैलेंस हो गया।
देखते हैं। तीन कॉपर, थ्री ऑक्सीजन, दो नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन एंड 6 हाइड्रोजन। ठीक है, ये भी बैलेंस हो गया। तो नेक्स्ट एक और लास्ट एग्जांपल। Al4C3 plus H2O giving rise to CH4 plus AlOH राइस। इसमें देखो, एल्यूमिनियम इस तरफ 4 है, तो फिर इधर भी 4 आना चाहिए। 4 एल्यूमिनियम हो गया। उसके बाद आता है कार्बन। कार्बन इस तरफ 3 है, तो फिर इस तरफ भी 3 आना चाहिए, तो इधर लिख लेता हूँ। और नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस तरफ है 3, 3 4 12 ऑक्सीजन है, तो फिर इस तरफ भी 12 आना चाहिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस तरफ है 24, इस तरफ है 12 प्लस 12, ओके 24। इक्वेशन इज बैलेंस। ठीक है, और एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल है C2H6 plus O2 giving rise to CO2 plus H2O। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले तो इधर 2 कार्बन है, तो फिर इधर भी 2 कार्बन आना चाहिए, तो फिर 2 लिख दिया। एंड कार्बन के बाद मेटल तो है नहीं, तो फिर पहले नॉन मेटल में कार्बन कर लिया। इसके बाद अपन करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस तरफ है, ऑक्सीजन इस तरफ कितना है, इस तरफ 4 + 1 5 है, तो फिर इधर अपन क्या लिख सकते हैं, 5/2। 5/2 × 2 5 हो गए। और नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस तरफ कितना है, 6 है, और इस तरफ कितना है, हाइड्रोजन 2 है, तो फिर मैंने क्या किया, इधर 3 लिख दिया। चैन मैंने क्या किया, इधर 3 लिख दिया। अभी हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, तो फिर ऑक्सीजन फिर से बिगड़ गया। चैन, ऑक्सीजन फिर से बिगड़ गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया इधर 4 + 3। ऑक्सीजन इधर हो गया 4 + 3 7 हो गया, तो फिर 5/2 के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/2 के जगह मैं लिख सकता हूँ 7/2। सही है ना, 5/2 की जगह मैं लिख सकता हूँ 7/2। अभी बाई 2 आ रहा है, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो फिर अपन इस पूरे इक्वेशन को × 2 करते हैं, तो फिर कितना हो जाएगा, 2C2H6 प्लस 7O2 गिविंग राइज टू 4CO2 प्लस 6H2O। ठीक है, ये बन गया फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन। इसमें कार्बन 4 है, 4 कार्बन है, ऑक्सीजन कितना, 14 ऑक्सीजन है, और इधर 8 + 6 14 ऑक्सीजन है, एंड इधर 12 हाइड्रोजन है, एंड इधर भी 12 हाइड्रोजन। फिर इक्वेशन हो गया बैलेंस। तो फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन विद मोलिकुलरिटी हायर देन 3 इज वेरी रेयर। तो मोलिकुलरिटी का मतलब क्या है, मोलिकुलरिटी का मतलब, एंड why is the probability of reaction with molecularity higher than 3 is very, probability of reaction with molecularity higher than 3 is very rare, as molecularity defines the collisions of the reactant molecules due to which the reaction occurs। मान लो कि 2 रिएक्टेंट है अपने पास, एक है रिएक्टेंट ए और एक है बी। ए का मॉलिक्यूल्स है एंड बी का मॉलिक्यूल्स। ठीक है, रिएक्शन कोलिजन थियरी क्या कहता है कि रिएक्शन इनके बीच में होता है बिकॉज ऑफ कोलिजन। ठीक है, कोलिजन होता है पार्टिकल मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो फिर ये जो ए मॉलिक्यूल है ना, ये जाके कोलाइड किया बी के साथ।
ठीक है। ये कोलेट करता है बी के साथ, और जो कोलिशन होता है ना, ऐसे ऐसे फालतू को कोलिशन नहीं होना चाहिए। कोलिशन का भी कुछ क्राइटेरिया होता है। तो फिर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू कंडीशंस फॉर ए रिएक्शन टू अकर, ठीक है ना, ये जो कोलिशन है ना, तो फिर द एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी जनरेट होना चाहिए कोलिशन के वजह से, ठीक है ना। एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एट द टाइम ऑफ कोलिशन, ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी जाके टकराया और रिएक्शन बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर पोजीशन में होना चाहिए, और एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी होना चाहिए, ठीक है। सो इधर क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन विद मॉलिक्यूलरिटी हायर देन 3। तो फिर मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या, डिफरेंस द कोलिशन, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है, डिफरेंस द कोलिशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ड्यू टू विच द रिएक्शन occurs, ठीक है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट conditions for a reaction to occur is energy greater than the activation energy and proper orientation of the reactant molecules at the time of the collision. For a reaction with more than three molecules, having the proper orientation during collision is challenging. मान लो कि तीन तीन मॉलिक्यूल्स है, तीन तीन मॉलिक्यूल्स को एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में भी और एक एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी में कोलिजन होना चाहिए। मान लो कि एनर्जी ज्यादा हो रहा है और ओरिएंटेशन नहीं हो पा रहा, और ओरिएंटेशन हो पा रहा है पर उतना एनर्जी नहीं मिल रहा, तो फिर ये बहुत मुश्किल होता है। तो फिर the probability that more than three molecules will collide and react simultaneously with a proper orientation is very tiny. So hence the reactions with molecularity higher than three are very rare. So these reactions will be very rare. तीन तीन molecules एक एक साथ मिल पे reaction बनाना ये बहुत rare होता है, ठीक है। So the reason क्या है? So the reason क्या है? The probability that the more than three molecules will collide and react simultaneously with a proper orientation is time. That is the reason. So next question is why water is liquid at room temperature. At room temperature, the molecules of water have some intermolecular forces of attraction, and the room temperature cannot provide sufficient heat for those molecules to overcome their forces of attraction, and therefore remains in liquid. So water molecules कैसे रहते हैं? ऐसा रहता है, और इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा है, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, और भी डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, सही है ना। तो फिर ये जो डेल्टा माइनस है इधर, और ये जो डेल्टा प्लस है, इन दोनों के बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। ऐसा बहुत सारा इधर एक वाटर मॉलिक्यूल, इधर एक मॉलिक्यूल, तो सबके बीच में ये एक इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर, ठीक है। ये ये मॉलिक्यूल्स को थोड़ा पास पास रखता है, ठीक है। और रूम टेम्परेचर में जो एनर्जी रहता है, दैट एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक दिस इंटरमोलिकुलर फोर्स। जैसे अपन हीट करते हैं वाटर को, मतलब बॉइल, जैसे वाटर बॉइलिंग पॉइंट को रीच करता है, तब क्या हो जाता है, द एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स इज मोर देन दैट ऑफ दिस इंटरमोलिकुलर फोर्स। उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये मॉलिक्यूल सेपरेट हो गया, ये मॉलिक्यूल सेपरेट हो गया, ये मॉलिक्यूल सेपरेट हो गया, तो फिर क्या बन जाता है, गैसियस स्टेट में रहता है, इसको बोलते हैं स्टीम, सही है। सो but at room temperature that energy is not so sufficient. So at room temperature the molecules of water have some intermolecular forces of attraction, and the room temperature cannot provide sufficient heat for these molecules to overcome their forces of attraction and therefore remains in liquid. Next is at room temperature. Room temperature anything anywhere from 0 degrees centigrade to 100 degrees centigrade. इसके बीच में 0 to 100, 0 to 100, ठीक है। Water remains in liquid state. Water is formed in liquid state. This is because of the tiny weak hydrogen bonds which in their billions hold water molecules together for small fractions.
एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है कॉन्स्टेंटली मूवमेंट में रहते हैं, और ये जो बॉन्ड्स है ना ये एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, ठीक है, वही रीजन है। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। तो पहले बोला था ना वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसमें बीच में एक सब्सटेंस है सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सो व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज? A salt bridge is a device used in an electrochemical cell for connecting its oxidation and reduction half-cells wherein a weak electrolysis. So फिर बताया था ना ये एक हाफ सेल होता है और ये एक हाफ सेल होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? इस हाफ सेल को क्या बोल रहे हैं? एनोड। इस हाफ सेल को क्या बोल रहे हैं? कैथोड। तो एनोड में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर से ट्रैवल कर रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहा है और इधर इलेक्ट्रॉन्स कंजम्पशन हो रहा है, कैथोड में रिडक्शन हो रहा है, मतलब कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों को मैंने सेपरेटली रख दिया तो फिर कुछ काम का नहीं रहेगा ना, इन दोनों को कनेक्ट करना, ऐसा इधर बाहर से कनेक्ट किया, ठीक। A salt bridge is also a device which is used in electrochemical cells for connecting its oxidation half and reduction half cells wherein weak electrolytes. In other words, a salt bridge is the junction that connects the anodic and cathodic compartments of the cell or electrolytic solution. The salt bridge usually consists of a strong electrolyte which is further made up of ions. So salt bridge में क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहता है, लाइक KCl होगा। KCl को जैसे अपन ने सॉल्यूशन में क्या तुरंत से फटाक से लिक्विड हो जाता है, ठीक है ना। ये जो है ना ZnSO4 हो गया, CSO4 हो गया, ये सब क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब KCl हो गया, ये GnO3 हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तुरंत से फटाक से ब्रेक हो जाता है जैसे ये सॉल्यूशन में। So the salt bridge usually consists of a strong electrolyte which is further made up of ions. For example, AgNO3, ACl, etc. Salt bridges are generally used in a galvanic cell such as voltaic cell or a Daniell cell. Salt bridge usually अपन किस में यूज करते हैं? galvanic cell. Next आता है salt bridge का function. The main function of a salt bridge is to help the maintain the electrical neutrality within the internal cell. It also helps in preventing the cell from taking its reaction to equilibrium. मैंने बताया था ना जैसे रिएक्शन खत्म हो गया, गैलन सेल का फंक्शन खत्म हो गया एंड जैसे एक फंक्शन खत्म हो गया तो क्या हो जाता है, अपन को उसको थ्रो करना पड़ता है, तो दैट्स व्हाई इट इज एन एनवायरमेंटल हैजार्ड, ठीक। सो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है? उस जो इक्विलिब्रियम में जाता है उसको डिले करता है, उसको रोकता है। The main function of a salt bridge is to help maintain electrical neutrality within the internal circuit. It also helps in preventing cell from taking its reaction to equilibrium. If salt bridges are absent or if they are not used, then the reaction will likely to continue and the solution in one half electrodes will gather a negative charge. Similarly, in the other half, electrodes will accumulate a positive charge. Same जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एनोड से इधर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, तो फिर इस तरफ क्या हो जाता है, थोड़ी देर बाद इधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इस तरफ इलेक्ट्रॉन कंजम्पशन हो रहा है, तो फिर थोड़ी देर बाद इधर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। एक पॉजिटिव चार्ज को पकड़ लिया और एक नेगेटिव चार्ज हो गया, one half electrons will gather a negative. Similarly, in the other half, the electrons will accumulate a positive. This will further result in the stoppage of the reaction and no electricity. इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जैसे इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया इधर से इलेक्ट्रॉन को निकलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और इधर नेट पॉजिटिव चार्ज, तो फिर इन दोनों के बीच अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल हो जाएगा और इधर इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है और इधर पहले से नेगेटिव चार्ज होता है, फिर इलेक्ट्रॉन करना ही चाहता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्जन, तो फिर सेल का फंक्शन ही बंद हो जाएगा, इट विल फर्दर रिजल्ट इन द स्टॉपेज ऑफ द रिएक्शन एंड नो इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, therefore, a salt bridge basically helps in preventing the accumulation of positive and the negative charges around the respective electrodes and further allows a smooth reaction to take place. It also helps in the continual flow of electrons. However, the purpose of the salt bridge is not to move electrons from the electrode, rather it's to maintain the charge balance because the electrons are moving from one cell to another. Then next, a salt bridge prevents the diffusion or mechanical flow of solution from one half cell. It prevents and minimizes the liquid-liquid tension potential arise between two solutions when they are in contact with each other. And a salt bridge acts as an electrical contact between two atoms.
तो ये हो गया सॉल्ट सॉल्ट ब्रिज के बाद। नेक्स्ट है define electrostatic force. So, what do you mean by electrostatic? Electrostatic force is an attractive and a repulsive force between particles caused due to their electrical charge. Electrostatic force का मतलब क्या है? इधर एक पार्टिकल है A, इधर एक पार्टिकल है B. मान लो कि A के पास है पॉजिटिव चार्ज, B के पास है नेगेटिव चार्ज. तो फिर ये दोनों हो गया चार्ज पार्टिकल्स. इन दोनों के बीच में क्या रहेगा? अट्रैक्शन रहेगा. सेम है. एंड दूसरा इंसिडेंस है कि पार्टिकल ए है विच इज पॉजिटिव है, पार्टिकल फिर से पार्टिकल ए है विच इज पॉजिटिव. दो एक पार्टिकल जो पार्टिकल बी है नेगेटिव है, पार्टिकल बी है नेगेटिव. इन दोनों के बीच में क्या रहेगा? पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स है. नेगेटिव और नेगेटिव इधर क्या रहेगा? रिपल्सिव फोर्स. सेम एक और ए और बी के बीच में क्या? Okay. The electrostatic force is an attractive and a repulsive force between particles are caused due to their electrical charges. ठीक है ना? इसके पास चार्ज है, इसके पास चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है. और इसके पास चार्ज है, इसके पास इन दोनों के बीच में क्या है? रिपल्सिव फोर्स और रिपल्सिव. The electric force between stationary charged bodies is conventionally known as the electrostatic. So electrostatic में देख लो हुआ कि static मतलब क्या है? चार्ज पार्टिकल रुके हुए, मतलब एक जगह पे ही होना चाहिए. तो फिर चार्ज पार्टिकल शुड बी स्टेशनरी. तो फिर इधर ये मान लो कि ये स्टेशनरी बी स्टेशनरी इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स. इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये कन्वेंशनली मेथड है. ठीक है. नेक्स्ट, इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज कूलम फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो कूलम्स. दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ Rutherford model. So Rutherford models का ड्रॉबैक. Rutherford मॉडल अपन को क्या बोलता है, वो क्या है उसके बारे में. नेक्स्ट, Rutherford atomic model was the first step in the evolution of the modern atomic. Hans Rutherford was a keen scientist who worked to understand the distribution of electrons in an atom. He performed an experiment using alpha particle and gold foil and made the following experiment. ये है एक रेडियोएक्टिव सोर्स है और ये है एक डिटेक्टर और ये है गोल्ड गोल्ड फॉइल. Rutherford क्या करता है? अल्फा पार्टिकल्स को यूज करता है. अल्फा पार्टिकल्स इस रेडियोएक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स निकल गया, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इधर से निकल गया, गोल्ड फॉइल को हिट किए और इधर से वो डिटेक्टर पे जाके, जैसे डिटेक्टर पे जाके गिरा, डिटेक्टर में लाइट आने लगता है. तो फिर पता चलता है कि अल्फा पार्टिकल्स कैसे गया है, कैसे गया है वो पता. तो फिर उसने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, उसने कुछ पॉइंट्स को नोट किया. लाइक मोस्ट ऑफ द alpha particles pass straight through the gold foil. और तो इधर ये गोल्ड फॉइल है, इधर से अल्फा पार्टिकल बीम आ गया और ये अनचेंज चला गया, ऐसे ही चला गया. तो फिर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास straight through the gold foil. There was a deflection of the alpha particles to a small end. तो फिर ये हो गया एक केस. तो दूसरा कैसा होता है? कई कई जगह पे ऐसा अल्फा पार्टिकल्स दिखती है और थोड़ा एंगल में दिखता है, थोड़ा एंगल में ऐसे दिखता है. और क्या नेक्स्ट क्या था? वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर रिबॉन्डेड. मान लो कि इधर एक अल्फा पार्टिकल है तो इसने हिट किया और ये ऐसा रिबॉन्ड है. ठीक है. तो फिर we observe 3 points, that is the one is most of the alpha particles passes straight through the gold foil. Okay? Passes straight through the gold foil undeflected. So second point is there is a deflection of the alpha particles by a small angle. The very small angle से वो deflection. Third point ये है कि very small amount of alpha particles are removed. Okay? From this experiment, we came to a following conclusion. Most of the space in an atom is empty. So gold foil का एक एक एटम के बारे में अपन देखें तो इसमें वो क्या बोलता है, एक एक मॉडल चाहिए. और
वो रिदरफोर्ड ने क्या बोला कि एक बीच में एक वो है चीज है उसको उसने बोला वो है न्यूक्लियस जिसमें है पॉजिटिव और ये है इलेक्ट्रॉन जो इस पॉजिटिव के चार्ज अराउंड ऐसा गोल गोल घूमेगा। ठीक है, तो फोन में ये डायग्राम बोलिए। वो बोलता है मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। जो भी इधर का स्पेस है ये जो blue line है, ये है एम्प्टी स्पेस सेम। And the space occupied by the positive charge is very small. Space occupied by the positive charge is very small. ये जो space है ना बहुत small है। तो वो कैसे बोलता है एक पूरा फुटबॉल ग्राउंड के बीच में एक टेनिस बॉल रख दिया, ठीक है ना, तो कितना स्मॉल दिखेगा। पूरे फुटबॉल ग्राउंड में बीच में टेनिस बॉल रख दिया तो वो जो टेनिस बॉल है ना वो रिप्रेजेंट करता है किसको, न्यूक्लियस को। और ये जो पूरा फुटबॉल ग्राउंड रिप्रेजेंट करता है एटम को। ठीक है, वो ऐसा कंपैरिजन दिया। The space occupied by the positive charge is very small, and the positive charges and mass of the atoms were concentrated in a very small volume within an atom. ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना ये और mass of the atom is also conformed to this positive charge, this small region of। तो फिर जब भी अल्फा पार्टिकल मतलब क्या, अल्फा पार्टिकल्स कैन आल्सो पॉजिटिवली चार्ज, अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव चार्ज। तो फिर ये जब भी जब इससे टकराया ये रिबॉन्ड बैक किया और जब भी इधर से गया ऐसे गया, इधर से गया ऐसे गया, इसके मान लो कि इसके पास से जा रहा है तो फिर डिक्लेयर कर रहे हैं, इसके पास से जा रहा है तो डिक्लेयर कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कैसे गया, अनडिफ्लेक्टेड गया। मतलब शो करता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये जो न्यूक्लियस है ना बहुत छोटा है। हाँ बहुत छोटा है। ओनली फ्यू ऑफ देम वर डिफ्लेक्टेड, मतलब जो भी पॉजिटिव के आसपास है वो टोटल टोटल डिफ्लेक्टेड। जो डायरेक्टली जो इस पॉजिटिव न्यूक्लियस से हिट हुआ वो क्या होता है, पूरा रिबॉन्ड बैक। ठीक है, वो ऐसा बोल ऐसे कंक्लूजंस दिए। तो फिर कंक्लूजंस क्या है, हम इस एक्सपेरिमेंट वी केम टू द फॉलोइंग conclusion. Most of the space in an atom is empty. Space occupied by the positive charge is very small. The positive charges and mass of the atom were concentrated in a very small volume. From these conclusions, he calculated that the radius of the nucleus is around 10 to the power 5 times less than that of the atom. ठीक है, Rutherford's atomic model. Rutherford developed a nuclear model of the atom on the basis of his experiment and observations. The Rutherford atomic model has the following features. Features क्या है Rutherford? The center of an atom is called the nucleus. It is positively charged and almost all mass of the atom resides in it. In the center of the atom, which we call as nucleus, वो positively charged है। पूरा atom का जो mass है, most of the mass, 99% of the mass of the atom is confined to that small space, that is electron spin around the nucleus in a circular path. Electron nucleus around goal goal goal. Comparatively, the size of the nucleus is smaller than the size of the atom. Size of the nucleus or size of the atom में difference क्या है? Radius का difference है 10 to the power of 5. इतना difference है। तो इसको comparatively the size of the nucleus is smaller than the size of the atom. तो फिर इसमें इतना possibility देता है, इतना features दे दिया। अब चालू हो गया ड्रॉबैक्स। क्या क्या है इस मॉडल में, इसमें नहीं क्या। ठीक, so as before, the Rutherford atomic model was also challenged and questioned by many. Rutherford atomic model failed to explain about the stability of the electrons in the circular. Rutherford ने क्या बोला, ऐसा पॉजिटिव चार्ज इधर न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड क्या करता है, गोल गोल गोल। ठीक है ना, अपन को फिजिक्स से पता है कि जो भी चीज सर्कुलर पाथवे में जाता है वो क्या करता है, एक्सिलरेट, है ना। जैसा एक्सिलरेट करता है तो मतलब क्या है, एनर्जी लिबरेट हो रहा है ना। तो फिर एनर्जी लिबरेशन होनी चाहिए। As per Rutherford's model, electrons revolve around the nucleus in a circular path. Electrons revolve around the nucleus in a circular path. But the particles that are in motion on the circular path would undergo acceleration, and acceleration causes radiation of energy by the charge particles. Charge particles जब भी accelerate करता है, energy release होता है in the form of radiation. Radiation release होता है। Eventually, the electron should lose the energy and fall into the nucleus. इसका जो भी एनर्जी है वो लूज होना चाहिए, सही है ना। तो फिर जैसे वो लूज हो
तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा। सही है ना, ये घूमना बंद करेगा तो स्टेशनरी हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा। तो फिर दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों पास पास आना चाहिए। इसकी वजह से क्या हो जाता है, इंस्टेबिलिटी होगी। Same, eventually electron should lose energy and fall into the nucleus, and this points to the instability of the atom. But this is not possible because atoms are stable. अपन को पता है ना, अपन जो भी चीजें देखते हैं वो गायब नहीं है ना, जो भी मान लेते हैं कुछ देख लिया, बिल्डिंग देख लिया, लाइट, फैन, these are all made up of atoms। वो सब चीज गायब नहीं होंगे ना, जैसे हम देखते गायब हो रहे हैं ऐसे होता तो नहीं होता ना। तो फिर वो सब क्या है, उसमें जो भी एटम्स है वो स्टेबल है। तो फिर रुदरफोर्ड उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। रुदरफोर्ड के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन से रेडिएशन एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन बंद हो, इलेक्ट्रॉन एक जगह रुक जाए और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियर पास पास आ जाएगा, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन आ जाएगा, दोनों से टूट जाएगा। सेफ्टी एटम इनस्टेबल होना चाहिए, एटम जैसे इंस्टेबल हो जाएगा अपन को जो भी चीज दिख रहा है गायब हो जाएगा। एक एक एटम में बदल जाता है, एटम का दिखता नहीं है तो गायब हो जाता नहीं है। तो फिर दिस पॉइंट्स द इंस्टेबिलिटी ऑफ दैट, but this is not possible because atoms are stable and so therefore well to give an explanation of this. So this is a drawback of Rutherford. See, so next is what is the final product when acetone is treated with methyl magnesium bromide followed by hydrolysis. So acetone with methyl magnesium bromide. Acetone का क्या, ये acetone क्या होता है, methyl magnesium bromide, methyl magnesium bromide इसका साथ क्या है? तो फिर इसमें क्या बी कर दो, मैग्नीशियम में ये है CH3 एंड एमजीके, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ना, इसमें क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, फिर ये क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज फॉर्मेशन करता है, CH3 एमजीके। ठीक है ना, ये जो CH3 माइनस फॉर्मेशन हो रहेगा, एक है न्यूक्लियोफाइल है, तो फिर ये जाके क्या करेगा, इधर देखो इस कार्बन का ऑक्सीजन तोड़ा और इस कार्बन को जो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करा ऑक्सीजन के पास, सेम है, तो फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, सेम है डेल्टा पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव CH3 माइनस है ना, ये जाके इस पे अटैक करेगा, इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये जाके इधर अटैक किया इसको, और ये जो डबल बॉन्ड में जो बॉन्ड है ना, ये जाके इधर जाएगा, ये इधर ऑक्सीजन O माइनस, ये स्पीशीज फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, मतलब हमने वाटर ऐड किया तो फिर वाटर से अपन बनेगा H, तो इधर O माइनस है, इधर बनेगा OH, तो फिर प्रोडक्ट बनेगा ये। ठीक है, थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल इज फॉर्म बिकॉज ये जो CH3 MgCl है ना, ये जो CH3 MgBr दोनों मान लो, इसको बोलते हैं अपन ग्रिग्नाट रीजन। इस ग्रिग्नाट रीजन की वजह से अपन को क्या मिल रहा है, R माइनस, R माइनस मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब CH3 माइनस, इस केस में R माइनस मतलब CH3 ये मिल रहा है। तो इट अटैक्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन टू गिव एडिशन। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक है ना, इधर देखिए, इधर क्या होता है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, सही है, क्योंकि ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड में थोड़ा ऑक्सीजन की तरह, तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज होगा, इसी वजह से मैंने जब इधर अटैक करूँ और डबल बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। थर्ड बुटाइल अल्कोहल इज, सो थर्ड बुटाइल एडिशन रिएक्शन, एक कार्बन का नंबर है, इसमें 3 कार्बन है और इधर 1 2 3 4 कार्बन, और कौन सा एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, R माइनस है ना, R माइनस क्या है, next is write major products
Methyl chloride reacts with KCl. Methyl chloride reacting with the KCl. Methyl chloride reacting CH3Cl. Reacting with the KCl. KCl क्या हो जाता है? KCl K प्लस MCl माइनस, ठीक है ना? और ये जो Cl माइनस है ये जाते हैं इधर, देखो इधर इस स्पीशीज में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा इस तरह, तो CH3 थोड़ा डेल्टा प्लस रहेगा, तो डेल्टा माइनस, तो थोड़ा डेल्टा प्लस है ना, और Cl क्या है? माइनस। तो फिर ये क्या करेगा? इधर से लेकर इसको हिट करेगा, जैसे ही इधर जाके ये हिट करेगा ये इसके साथ बॉन्ड तोड़ देगा, सी एस इधर Cl रहेगा, और Cl माइनस आ गया, Cl इस तरह करके इधर थोड़ा थोड़ा बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये इधर बॉन्ड थोड़ा कट करने लगे, तो फिर फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? फाइनली प्रोडक्ट इसमें बन जाएगा, Cl तो बाहर निकल जाएगा, और मतलब Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, और इधर CH3Cl बन जाएगा, एंड इधर Cl माइनस बाहर निकला, और एक KCl इधर K प्लस है, K प्लस प्लस माइनस KCl। Okay, when methyl chloride is treated with KCl, it undergoes a substitution reaction to give methyl sign, CH3Cl plus KCl, which is known as nucleophilic substitution reaction. तो एक न्यूक्लियोफाइल, ये जो Cl मैंने कहा ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? एक और न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इधर से क्या निकल रहा है? Cl माइनस निकल रहा है, वो भी एक न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को जगह ले रहा है, एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज की जगह ले रहा है, तो फिर इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, CH3Cl plus KCl is the product. So the next question is, calculate the boiling point of a solution containing 18 gram of glucose in 1 kg of water, given that the kb for water is 0.52 kg, 0.42 Kelvin kg. ठीक, तो फिर अपन को क्या कैलकुलेट करना? बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेट, ठीक है ना? तो फिर अपन को इधर पहले तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना, क्योंकि अपन को पता है बॉइलिंग पॉइंट, वाटर बॉइल्स है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 373.15, सही ना? नॉर्मल में तो इतना ही होगा, अपन इधर क्या कर रहा है? वाटर में एक सोल्यूट ऐड कर रहा है, दैट इज ग्लूकोज ऐड कर रहा है, उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बदल गया, तो फिर अपन चेंजिंग बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, इसी को बोलते हैं केबी इनटू मोलारिटी, है ना? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलारिटी। तो फिर पहले अपन को मोलारिटी कर लेते हैं, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन केजी, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन केजी, सेम है। तो फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन केजी पता है, एक केजी ऑफ वाटर दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना दिया है? सोल्यूट दिया है 18 ग्राम, अपन को पता है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास, molecular mass of glucose is 180, सही है ना? And weight which is given, weight given, mass which is given is equal to 18 gram, so फिर number of moles is equal to given mass divided by molecular mass, given mass is 80 divided by 180 is equal to 1 by 10, that is 0.1 mole, है ना? 0.1 mole is the number of moles, in the molarity will be 0.1 divided by, that is 0.1 mole, ठीक है? That is the molarity. So next delta TB is equal to Kp into m, तो delta TB is equal to Kb, Kb कितना है? 0.5, which is the Kb which is given, into molarity कितना है? 0.1, तो इसको चेंज किया, that is 1 into, चेंज किया तो नहीं, तो मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 0.052 हो जाएगा, 0.05 को Kelvin, so change in temperature is 0.05 Kelvin,
तो फिर टेम्परेचर कितना हो जाएगा 373.15 प्लस 0.05, तो वो बन जाएगा। नेक्स्ट द बॉइलिंग पॉइंट। सो इधर भी लिखा हुआ मोलरिटी ऑफ द ग्लूकोज given amount of the glucose is 18 gram, so moles of glucose is 18 gram divided by 100 gram per mole, that is 0.1 mole. Amount of the solvent is 1 kg, which is molality of the glucose solution, number of moles of solute divided by amount of solution, the amount of solvent लिखना, तो 0.1 divided by 1 kg, molality of glucose solution, molality कितना आ गया 0.1 mole. This molality आ गया, temperature at which water will boil, we know the change in boiling point, that is delta T is given by KT into molality. So 0.52 into 0.1, that is 0.052. So since water boils at 373.15 at room pressure, atmospheric 1.013 bar, therefore the boiling point of the solution will be mixed होने के बाद कितना है 373.15 plus 0.05, that is 373.20 AN boil. ठीक है। नेक्स्ट है calculate the number of moles of amino required to oxidize 1 mole of ferrous oxalate in acidic medium. Okay. Number of moles of amino required to oxidate 1 mole of ferrous oxalate in acidic medium. Ferrous oxalate ये इस चीज calculate the number of moles required to number of moles of amino required to oxidize 1 mole of FeC2O4 completely. So इक्वेशन बनेगा MnO4 प्लस ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बनेगा बैलेंस। सो अपन को इसके वजह से अपन को क्या पता चल रहा है 5 मोल्स ऑफ FeC2O4 को ऑक्सीडाइज करने के लिए 3 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस चाहिए, ठीक है। एंड 5 moles of FeC2O4 reacts with 3 moles of MnO4, 5 moles चाहिए 3 moles of MnO4 के साथ रिएक्ट करने के लिए। अपन को क्या करना है, क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 इक्वल टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ दिस इज, तो फिर 1 मोल ऑफ FeC2O4 के लिए कितना चाहिए 3/5 मोल्स ऑफ, ठीक है। 5 मोल्स को करने के लिए 3 मोल्स चाहिए, 1 मोल को करने के लिए 3/5, ठीक है। So therefore the number of moles of MnO4 is required to oxidize 1 mole of ferrous oxide completely in acidic medium will be 3/5 0.6 moles. Yes. ठीक है। Next next question is, what is the product formed in the reaction of R2 bromobutane with KOH in ethanol? ब्रोमोब्यूटेन रिएक्ट कर रहा है KOH, ठीक है। ब्रोमोब्यूटेन का टू ब्रोमोब्यूटेन है, तो फिर टू ब्रोमोब्यूटेन रिएक्टिंग विद KOH, सेम KOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो फिर KOH में क्या क्या रहता है OH माइनस रहता है। ये जो ब्रोमोब्यूटेन का ये जो उसके बगल में जो कार्बन है ये कार्बन है, ये एसिडिक कार्बन रहता है, सही है ना, एसिडिक कार्बन रहता है। इसमें जो H प्लस है ना इसको ये OH माइनस से खींच लेता है, तो फिर इधर नेगेटिव चार्ज वो इधर आता है, तो फिर इधर आता है C C डबल वन C, ये फॉर्मेशन होता है। देन इसमें भी मेजरली बनता है ट्रांस का फॉर्मेशन होता है ग्रेटर देन 6, ठीक है। ट्रांस विल बी मोर स्टेबल। ब्रोमोब्यूटेन on reaction with alcoholic KOH mainly gives 2-butene. The hydrogen on C3 carbon is more acidic than the hydrogen on C1. Then ये जो C3 carbon will be more acidic. The product is formed according to Sed's rule. It states that if any alkyl halide undergoes elimination,
Then the more saturated atom will be the more major product. Okay. On next, predict the products and the mechanism of the reaction between benzene and chlorine in presence of ALCL. Benzene and chlorine in presence of ALCL. So Cl2 plus AlCl3, ये जो है ना, ये कॉम्बिनेशन अपन को प्रोड्यूस करता है Cl प्लस एंड AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस कैसे करता है? जैसे AlCl3 है ना, ये हेटेरोफिलिक क्लीवेज में होता है, Cl रहता है, इसका हेटेरोफिलिक क्लीवेज हो जाता है, तो फिर Cl प्लस Cl माइनस फॉर्म, Cl प्लस ऐसे रहेगा और Cl माइनस जाके AlCl3 के साथ जुड़ेगा, तो फिर AlCl3 प्लस Cl माइनस AlCl4 बनेगा एंड Cl प्लस है, ठीक है। तो जो Cl प्लस है ना, ये जाके बेंजीन से रिएक्ट करेगा, बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो फिर ये बनेगा। In this reaction, AlCl3 is a catalyst to activate the chlorine molecule. In this reaction, AlCl3 is a catalyst which activate the chlorine molecule to show the heterolytic cleavage, heterolytic cleavage unequal cleavage. And AlCl3 is an electrodeficient molecule and forms the AlCl4 minus and Cl plus when react with the Cl. This Cl plus attacks on the electron-rich benzene ring. तो फिर बेंजीन रिंग में कैसे अटैक हो जाता है? बेंजीन में तो क्या रहता है? बेंजीन ऐसे रहता है, तो फिर Cl प्लस जब आएगा तो क्या करेगा? ऐसे शिफ्ट होगा तो माइनस से, तो फिर क्या फॉर्मेशन बनेगा? तो Cl बनेगा और इधर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो फिर इधर से क्या जाएगा? इधर जो भी हाइड्रोजन है ना, वो निकल जाएगा, H प्लस निकल जाएगा, इसे H प्लस निकल जाएगा, इधर भी अलग है, इधर आ जाएगा, इस वजह से इधर फिक्स है फॉर्म होगा, ठीक है। ये होता है। सो क्लोरोबेंजीन इज द प्रोडक्ट विच इज फ्रॉम, मान लो कि अपन एक्सेस Cl को यूज कर रहे हैं, एक्सेस Cl को जैसे यूज करेंगे तो फिर हेक्साक्लोरोबेंजीन, ठीक है। So this is the product which is formed. So आज के लिए इतने बस, so thank you everyone.